Sir, we did So the 17. 13th one we have done, correct? Sir, we were on 17th sum. We are Yes, on sir. 17. We have done or we are on 17. So we have to We do 17th. So we did 13 and we have to do 17th. Okay, so only that was the last. I think I told you all to try it yourself. Sir, 17 was done. Uh, Shivanjali, your voice is too soft. It's a little difficult to hear. If you can maybe even uh, put it in the chat box also, that's fine. Sir, 17th sum was done. Sorry, 17th? So she is saying 17th sum Sum was was done. 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 Okay, so the 18th one is nothing much of scope. So shall we start with the new topic, that is center of gravity? Yes, sir. Okay, let us regroup ourselves. What we have done till now, theoretically, can someone just revise me about it? What we have done theoretically So we have in studied the force. momentum of force, torque, and the principle of moments. Okay, can someone quickly just give us what is torque? Give us a maybe a short definition fast. So the turning effect of force. Okay, turning effect of force. And how would you define it? So the force that is unable to produce linear motion of body because in its direction because the body is not free to move. I'm really sorry. The voice. I feel the voice was breaking. Was it breaking only for me or? Sir, we can hear it clearly. So your Able to hear network it is showing clearly? yellow one. Just a moment. Yeah. Now, if someone can please repeat that. I did not hear it clearly. Sorry. So the force that is unable to produce linear motion of body in its direction because the object is not free to move. Sir, Oh, you're muted. sorry. I got disconnected. I don't know somehow, and I got connected again. Yeah. Okay. Now, how actually that was clear that he whatever I think so others spoke of. Correct. So Aditya. Sorry. Sir, I am Aditya, sir. Aditya spoke of. Okay. I'm really sorry. Aditya Ugle. Aditya Ugle. Correct. Yes, sir. Okay. But when we define it, we define it as a product of something. So the product of force into distance. Force into displacement. Is it correct way of defining it? Have we defined torque or moment of force this way? Yes, someone who can put light on that. How did we define it? Magnitude of force, product of magnitude of force, and Perpendicular distance from Perpendicular the distance. pivot. yes, I wanted that. I was really looking for that. It's a simple definition. I don't think so. It's very difficult. Please, children, be very sure. I've been telling you all to write these definitions. We are making sure that we are going to write these definitions. हम लोग ये सब लिखेंगे एक बुक में. क्या होगा पता है क्या? इससे we make a book. See, like it's like we make a key factor of the chapter. So I would recommend you all to make a key book or maybe even pages. But the only part is you have to make sure that you keep your pages. जो आप pages बनाओगे इसमें आप important points या facts लिखोगे chapter के या definitions लिखोगे या कुछ भी point to remember लिखोगे तो आप उसको एक साथ रखो ये हम हमेशा आपको काम में आएगा ये याद रखना. Remember this, children. It will always be good for you and it will be helpful.
ओके, समझ में आ रही है बात सबको? अच्छा, और क्या पढ़ा उसके बाद? टॉर्क के बाद क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? Moment Yes. of force. Equilibrium is what? Moment of force. Moment of force. Sir, when the force create no change in the body. Mhm. Yes. And it is on the rest. Sorry. Sir, when the when the forces act on the body and the body is on rest. Only rest. Only rest. रेस्ट में रहेगी तो ही इक्विलिब्रियम होगा क्या? So can you repeat the question? मेरा क्वेश्चन ये था, आप लोगों ने बोला कि हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा अगली बार, अगला मतलब टॉर्क के बाद, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन था। Sir, two forces are applied in such a way that two or more number of forces are applied in such a way that the resultant of all forces is zero. Correct. The resultant of all forces is zero. Yeah, even I agree with you, Asim. When forces don't Aditya. create any change in the state of rest or the state of motion. So it may be one or more forces. Whenever more than one forces do not, okay, cause any change in the state of the object. ये स्टेट क्या हो सकता है? रेस्ट का स्टेट भी हो सकता है, दूसरा Or क्या स्टेट हो motion. सकता है? Or motion. स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों चीज में अगर चेंज नहीं हो, दोनों में से एक चीज पे अगर आप कहीं भी फोर्सेस लगाओ, कहीं भी, एक ऑब्जेक्ट है टेबल पे पड़ा है, बुक है ना, बुक के ऊपर कितनी सारी फोर्सेस एक्ट होती है, हमने 9th ग्रेड में पढ़ा था, याद है? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, फिर भी बुक हिल रही है कि जगह से? No, sir. बुक नहीं हिली, टेबल के ऊपर जैसी की वैसी, करेक्ट? हाँ, तो वो इक्विलिब्रियम में है ना, इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग, स्टिल द स्टेट ऑफ रेस्ट इज मेंटेन्ड बाय द बुक। सो दैट इज एन एग्जांपल। ओके, मैंने आप लोगों को एक कार का एग्जांपल दिया था, याद है? मोशन के लिए याद है, मैंने एक एग्जांपल दिया था। अच्छा छोड़ो, चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, है ना? आप समर, अभी तो समर चल रहा है तो फैंस तो चलते होंगे घर पे, Yes, sir, चल रहा है। करेक्ट ना? फैन चलते हैं तो आप उसको कुछ तो भी एक सेटिंग पे डाल देते हो, रेगुलेटर को। यूजुअली यू विल नाउ कीप इट एट द हाईएस्ट सेटिंग, है मैं करेक्ट? हाईएस्ट स्पीड से। Sir, medium, Yes. sir. Highest में बहुत। अच्छा ठीक है, मीडियम पकड़ो, चलो। कुछ लोग हाई पे रखे, कई लोगों को ज्यादा कूलनेस पसंद है, कुछ लोगों को नहीं, ठीक है मीडियम पसंद है, फेयर इनफ, पर चालू है। अभी ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि वो स्पीड कम ज्यादा हो रही है? No. नहीं होता है ना, हालांकि उधर रेजिस्टिव फोर्सेस तो है ना, एटमॉस्फेरिक बाजू का, सराउंडिंग का जो एयर पार्टिकल्स है उसका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, और फैन के ऊपर वैसे भी ग्रेविटेशनल पुल तो एक्ट हो ही रहा है ना, डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. ऊपर से वो सस्पेंडेड है, फैन रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है, करेक्ट? Yes. आप सीलिंग को कनेक्ट करके रखा होगा, सीलिंग फैन है तो कनेक्टेड है ना, पर हाँ, फिर sir. भी फैन अपनी स्पीड में है, इट इज मेंटेनिंग इट्स स्पीड of rotation, okay, it has maintained its motion, so that is equilibrium of motion. An example, examples मिलेंगे आपको, मैं एक just I gave an example, ये पढ़ा, ओके। तो हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट को क्या कहते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, Static. करेक्ट? और मोशन इक्विलिब्रियम ऑफ Dynamic Dynamic. equilibrium. डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, okay, you should be able to Excuse me, sir. differentiate between, I'm So sorry, something background noise is coming from your mic.
Sir, mic is got off. Yeah, I'm really sorry. There is some construction work going on, and it is so near to me that it is really unavoidable to. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, I'm really sorry for that. मैं रुक जाऊंगा लगा तो जब आवाज शुरू हो जाएगी ना मैं माइक्रोफोन म्यूट करके रुक जाऊंगा 2 मिनट और आपसे बात कर लूंगा. Because I was wearing headphones and that means I irritated the can ears. understand. That's why. I can understand. Sorry for that. No, sir, no Okay, problem. यहाँ तक हम पढ़े. इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? The Couple. principle of moments. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. उससे पहले हमने कपल या कुछ पढ़ा था क्या? Yes, sir. Yes, इक्विलिब्रियम sir. से भी पहले क्या होता है कपल? Two forces acting on opposite sides. आप लगभग मतलब you have given me nearly the correct definition. There is one thing, two equal and opposite forces Yes, sir. which are not acting at the same point, which are not acting along the same line. है ना? एक लाइन में एक्ट नहीं करता. मैंने आप लोगों को बताया था. उसको हम लोग क्या कहेंगे? कपल कहेंगे. और मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ कपल? So it is same as the moment of force or torque. मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे निकाला और सिर्फ डिफाइन करते वक्त हमने अगर लिखना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल, ओके, वी हैव टू से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्सेस. क्या कहेंगे? Product of either forces. प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. वो दोनों फोर्सेस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल. ओके, लेट मी कम बैक. फिर उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा. अच्छा, उसके बाद तुम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? In which the sum of anti-clockwise moments is equal to the sum of clockwise moments. करेक्ट. बट Yes. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये कभी नहीं भूलना. फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम, ये याद Yes, रखना. sir. इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत कंपल्सरी है. अगर आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हो ना तो देन इट्स द डेफिनेशन सीम्स टू बी इनकम्प्लीट. लाइक सोचो आप लोगों ने एक ड्राइंग किया है और आंखें नहीं निकाली तो क्या होगा? किसी बंदे का ड्राइंग किया है आपने, स्केच बनाया और आपने आंखें नहीं निकाली तो क्या होगा? इट वुड सीम टू बी इनकम्प्लीट. तो खाली खाली तो लगे. सब कुछ निकाला, आंखें भी निकाला आप लोगों ने, पर उसका आई लैशेज या कुछ तो भी, या तो अंदर का जो ब्लैक कलर का जो होता है वो पार्ट नहीं निकाला तो कैसे लगेगा? It won't look good. Correct. It will look incomplete rather than good. तो वैसे ही ये इक्विलिब्रियम वर्ड मिस आउट नहीं कर सकते हम लोग. हमें इक्विलिब्रियम ये वर्ड यूज करना याद रखना पड़ेगा. समझे? Yes, sir. ठीक है, आगे. उसके आगे और कुछ पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा. That was the last point. No, sir. करेक्ट. अब हम आ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, बिफोर दैट व्हाट इज ग्रेविटी? व्हाट इज ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल? क्या होता है ग्रेविटी? क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने. मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट है. मुझे तो ऐसा लगता है 7th के बच्चे भी इसका आंसर दे पाएंगे. Sir, the force which attract the objects towards Sorry? the earth. Sir, the force which attract the objects towards the earth. The force that tries to Attracts the object attract an object. Okay. to the earth. To the earth. Force applied by center of gravity. Center of Center gravity. of earth. Center correct. of earth. The center of the earth. So ये फोर्स कहाँ से आता है? अर्थ के सेंटर से आता है. वो किस पे होता है? हर ऑब्जेक्ट which is either on the earth surface or near to the earth surface. मतलब जरूरी नहीं हमेशा अर्थ के सरफेस पे ही होना चाहिए. अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर भी रहा या थोड़ा कुछ हद तक, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होता है तो उसको हम ग्रेविटी कहेंगे. करेक्ट है ना? अच्छा, Yes. तो इस ग्रेविटी की वजह से क्या इफेक्ट होता है किसी चीज पे? किस चीज पे इफेक्ट होता है? So that thing remains sticks to the earth. It Some will means not stick. Some means not completely stick, but it does not flow from the earth. ओके. और क्या इफेक्ट दिखेगा? और क्या चीज पे इफेक्ट करेगा?
या क्या फिनोमेना तैयार होगा उस ग्रेविटी की वजह से? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, समझो आप एक ऐसा सोचो कि मैं एक एग्जांपल आपको पेंडुलम का दे दूं। आपने एक पेंडुलम लिया, एक बॉब लिया, स्ट्रिंग लिया, उस पेंडुलम का स्ट्रिंग को आपने किसी जगह पे टाई कर दिया एंड यू हैव लेफ्ट इट, है ना? Yes, You have sir. left it, है ना? उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तो वो क्या क्या इफेक्ट करेगा उस पेंडुलम के बॉब के ऊपर, बताओ, या क्या फिनोमेना तैयार होगा? So the bob will show to and fro movement. नहीं, हम हिला नहीं रही है, बॉब इज एज इट इज। फिलहाल तो हम हिला नहीं रही है उसको उसको वी हैव नॉट येट सेट इट इनटू मोशन, दैट्स स्टिल स्टेबल फॉर अ व्हाइल। So it will remain stable. इट विल रिमेन स्टेबल, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, उसके सी देखो, उसके वजह से किसी चीज का वेट, देयर इज अ वेट दैट इज गोइंग टू बी दैट possessed by that ऑब्जेक्ट, बराबर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट Yes, का on the मास screen. ऑलरेडी होता है, पर हम क्या कहते हैं, वेट किस वजह से आता है? So due to gravity. Due to gravity, the force of gravity of the earth's center. सब मानते हैं कि नहीं मानते? किसी को इसमें शक है क्या? No, sir. श्योर? Yes, sir. ओके। अभी आप लोग स्कूल में होते हो, ओके, कुछ लोग फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ बास्केटबॉल खेलते होंगे। खेलता है क्या कोई फुटबॉल बास्केटबॉल आप में से? Yes, sir. Yes, Not in sir. school, but at home. Usually, why I'm speaking about the games with balls of bigger size is because आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को वो आदत होती है, बॉल लेके उंगली पर स्पिन करते रहेंगे, देखा है आप Yes, लोगों sir. ने, है ना? कई लोगों को आदत होती है। that is a skill that many of them feel, है ना? चलो, घूमते हुआ छोड़ो, ऑब्जेक्ट घूमता हुआ छोड़ो, इवन नोटबुक्स मैंने देखा है कई बच्चों का, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट, बट आई हैव सीन पीपल इवन रोटेटिंग नोटबुक्स ऑन देयर वन फिंगर टिप, है ना? देखा है ना? Yes, sir. Yes. देखा है, sir. अभी आप लोग एक ऐसा अजम्पशन करो कि आपके पास एक स्केल, देखो जैसे मेरे पास एक स्केल है, ओके, दिस इज स्केल, दिख रही है स्केल? Yes, sir. सब blur हो गई फिल्टर की वजह से. थोड़ा ब्लर दिख रही है। ये हाँ, अगर सब मैंने filter. फिंगर पे रखा तो बैलेंस कर पाता हूँ क्या कभी मैं? कभी कभी होती है ना बैलेंस, कुछ जगह हाँ पे सर, हो जाती है. ऐसे कुछ जगह मिलती है, हर जगह पे नहीं होगी। देखो मैं एंड पे रखूंगा तो होगा क्या बैलेंस? ये No, एंड पे sir. रखा है, इसको नहीं होगा बैलेंस। मैंने उसको सेंटर कहीं पे बीच में कहीं तो भी रखा है, अब वो थोड़ी बैलेंस हो रही है, थोड़ा झुकी हुई है, थोड़ा उसको और मैं ये करूंगा तो बैलेंस हो जाएगी, है कि नहीं? तो ऐसी हर चीज उसका एक जगह ऐसी होती है, there's one place, one point, rather than saying a place, in every object where you can balance the entire object, पूरे ऑब्जेक्ट को वो टिप के ऊपर आप बैलेंस कर सकते हो। उस पॉइंट पे आप अगर उसको सपोर्ट देने की कोशिश करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। सोचा है आपने कभी? Yes, sir. सर ऐसा होता है, सोचा नहीं. होता है ना, होता है, ऐसा होता है। इनफैक्ट ऐसी भी कंडीशन है कुछ जगह पे मैंने देखी हुई है कि एक बड़ा सा बैम्बू या कुछ को भी पोल लिया, तो यू आर कीपिंग इट वर्टिकल ऑन द टिप ऑफ द फिंगर और यू कैन बैलेंस इट, ऐसा भी देखा है मैंने, होता है ना? Yes, sir. देखा है क्या? So, but the finger पे बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जिसपे आप उन ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस कर पाते, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई सारी चीजें आप लोगों ने कई सारी चीज आपने खुद बैलेंस किया होगा कई बार, कई चीजों को। स्केल का तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, मुझे तो लगता है हर बंदे ने कभी ना कभी ये तो ट्राई किया ही होगा स्केल को बैलेंस करना। Yes, sir. Even the pen. हर स्टूडेंट ने, करेक्ट, every one of you, have you all tried something, balancing something, if not the scale, So the pen. पेन को बैलेंस करने की कोशिश किया। पेन इज अ लिटिल एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, हम लोगों को पता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है। So the famous toy. बट देयर आर यूजुअली मेनी थिंग्स व्हिच आर सिमेट्रिक। तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो सकता है, ये सिमेट्रिक होता है ना? So that famous toy also, that spinner. सॉरी, So even the spinners. या फिजिट स्पिनर बहुत क्रेज आया था बीच में, तो आप रोटेट करने के बाद आप फिंगर टिप पे
उसको रोटेट करते थे और उसको बैलेंस करते थे. That was a great, what you can say, Invention. it was a good pastime. That was the pastime of concentration. There were many बहुत सारी चीजें उस पर कही गई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ओपिनियन दी थी, but it was a good, for that time it was a good invention for a while. Now people don't even, I don't think so, it's the craze is that much left, that much. No, sir. चलो फिर भी we are not worried, we are mainly worried about our studies, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये बात हमको जाननी चाहिए कि ऐसी हर एक ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऐसा होता है, एक पॉइंट जहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने का कोशिश कर सकते हो और बैलेंस हो सकता है उस ऑब्जेक्ट पे. फिर भले आप उसको एक छोटे से टिप पे क्यों ना रेस्ट करने की कोशिश कर, सिर्फ टिप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी जो स्टिफनेस है वो उसका वेट सह सके, एक. और दूसरा बात, जो सरफेस को आप उसके ऊपर रेस्ट कर रहे हो वो सरफेस भी इतना ताकतवर होनी चाहिए कि वो उसको, उस प्रेशर को, वो टिप के प्रेशर को सह सके. ये अगर दो चीजें हो सकती है तो यू कैन बैलेंस एनी ऑब्जेक्ट इन सच कंडीशंस, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो आप अगर डिफाइन करना चाहो तो अभी कैसे, मतलब मुझे एक जनरल सेंटेंस में बताओ. आई डोंट वांट द एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक सेंटेंस, एक जनरल सेंटेंस मुझे बताने की कोशिश करो कि आपको अगर किसी ने पूछा कि यार व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लीज एक्सप्लेन. अगर ऐसा सोचो कि योर जूनियर फ्रॉम स्कूल, कोई 9th ग्रेड का स्टूडेंट आता है आप लोगों के पास, या 8th ग्रेड का स्टूडेंट आता है और आपको पूछता है भैया या दीदी, यही कहेंगे यूजुअली, ओके, और फ्रेंड एट द मोस्ट, कि प्लीज टेल मी व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप कैसे बताओगे? Sir, point of an object on which we can balance the object. बैलेंस ऑब्जेक्ट, ओके. तो वो बैलेंस क्यों हो सकता है, क्यों आप लोगों को पता है क्यों हो सकता है? क्यों होना चाहिए उस पॉइंट पे बैलेंस? क्योंकि ऐसा लगता है उस पॉइंट पे पूरे ऑब्जेक्ट का वेट समाया गया है. द एंटायर वेट सीम्स टू बी accumulated at that particular point. लगता है कि नहीं? Yes, sir. है ना? अब डिफाइन करते वक्त वी कैन नॉट गिव अ, सी दिस वाज द एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन, ये हमने किसी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइन किया, बट दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट एंड अ परमानेंट डेफिनेशन. करेक्ट? ये पूरा परफेक्ट या परमानेंट डेफिनेशन है क्या? No, sir. नो. तो फिर क्या हो सकता है आपका परफेक्ट परमानेंट डेफिनेशन, क्या हो सकता है? तो इट इज दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट विच, उसके आजू बाजू में, देखो एक बुक पकड़ा, समझो आपने एक बुक लिया और आपने समझो, अभी ऐसा समझो कि ये बैलेंस हो रहा है ना? अब बुक कैसे बना है? बुक we let us group ourselves to grade 6 and 7. हमने मैटर पढ़ा है ना? क्या होता है मैटर? सब्सटेंस, मैटर क्या होता है? हाउ इज इट मेड अप ऑफ? The tiny particles. टाइनी पार्टिकल्स, करेक्ट. अब वो टाइनी पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट होगा ना कुछ तो वेट होगा ना, थोड़ा बहुत Yes, कम होगा ना. ये पूरे का वेट मिला के अगर ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये पेज पे कितने सारे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हो गए? न्यूमरस. और हर एक का वेट मिला के इस पूरे बुक का वेट बन गया है कि नहीं? अग्री करते हो कि नहीं? इसका Yes, मास sir. उनकी वजह से बना है, उन टाइनी पार्टिकल्स की वजह से बना है. देखो एक ही बंदा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है. आई वांट अदर्स आल्सो टू पार्टिसिपेट. Yeah, it's not, I am happy that one person is responding, no doubt, है कि नहीं? और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि वो चुप हो जाए. इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो चुप हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सब लोगों ने, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. अभी तक मैंने जस्ट, आई एम एट द बिगिनिंग पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बड़ा नहीं है वैसे भी, इट्स अ स्मॉल टॉपिक, बट स्टिल किसी को अगर कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो. है कोई, है किसी के पास डाउट है? आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन, एटलीस्ट इन द चैट. Is there anyone who's having any doubt till now, whatever I have spoken about? Sure? No doubt. No doubt, sir. कोई डाउट नहीं है. ओके, सो किसी को डाउट नहीं, चलो. तो इट इज दैट पॉइंट, ओके, अबाउट विच कितने सारे पार्टिकल्स हो गए? न्यूमरस पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल्स हो गए?
इन्फिनाइट पार्टिकल्स, और उनका वेट। अभी देखो हमने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है, इस स्केल को अगर मैं बैलेंस कर रहा हूं मतलब क्या हो गया है, लेफ्ट साइड में हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में कौन सा ये होता है मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट साइड में कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। Clockwise. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं दोनों मोमेंट्स। अब ये मोमेंट्स क्या करने की कोशिश करें, फोर्स है ना ये मोमेंट्स का, तो फोर्स है मतलब वेट। तो ये जो मोमेंट्स ऑफ वेट्स है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट को नहीं हो गए उस बुक के केस में, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। सो अबाउट दैट पॉइंट न्यूमरस पार्टिकल्स आर देयर, और उनके मोमेंट ऑफ वेट्स, मोमेंट ऑफ वेट समझ में आया ना आप लोगों को, मोमेंट Yes, ऑफ sir. वेट मतलब क्या, वो वेट की वजह से जो भी मोमेंट बिल्डअप होने वाला है, टर्निंग इफेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको सपोर्ट पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो वो मोमेंट जनरेट करेगा, पर जब बैलेंस पे है तो जितने सारे मोमेंट्स ऑफ वेट्स है उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के, दोज ओके, द सम ऑफ दोज मोमेंट्स ऑफ वेट्स इज जीरो। क्या है उस मोमेंट्स ऑफ वेट्स का सम, अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। समथिंग नियर टू इक्विलिब्रियम, आपको लग रहा है इक्विलिब्रियम Yes, के sir. आसपास हम लोग कुछ तो भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यस सर। है ना, लगभग सेम है ना इक्विलिब्रियम, वो कंडीशन जब बैलेंस होने वाला है तो इक्विलिब्रियम ही हो गया, है ना। बट दैट पॉइंट वी आर मेनली कंसिडरिंग व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगेन आई रिपीट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, ओके, अबाउट विच the moment of the algebraic sum of the moments of weights of the particles is zero, है ना। The second statement would be it is that point of the object at which the entire weight of the object can be assumed to be accumulated. समझ में आ रहा है, कोई इसको रिपीट करने की चाहत रखता है क्या, किसी को ऐसा लगता है कि सर लेट मी ट्राई आउट, anyone wants to try the statement? Yes child, anyone, किसी एक ने तो करना चाहिए यार, now we are in grade 10. चलो, don't be so passive children, be a little frank, free, and I would So the point along which all the particles have their weight forces on a certain point which is known as center of gravity. okay. और किसी को कुछ कहना है, कोई भी कहना चाहता है कुछ भी? Sir, may I try? Yes, sure. देखो The गलत point हो at जाए, which yeah, I mean, the point at which the weight of the object is at the point. weight of the object is accumulated at that point. Yes, Okay. sir. Great. Fair trial. देखो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना तब तक, देखो when I try no, then I try to catch myself. मैं अगर कुछ चीज ट्राई कर रहा हूँ ना तो मैं खुद मेरी गलतियां कैच करने की कोशिश करता हूँ. So the next time when I do it, it becomes perfect. Means near to perfect. I won't say perfect. I try to get perfection by trying it out. और ट्राई करते वक्त हम अपनी मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं. So आपकी अगर आंसर्स गलत हो गए तो no one is going to punish you for something, correct? So you can try it out. Yes, good. Anyone else wants to speak up of it again one more time? इस definition को किसी को कहने की इच्छा हो रही है कि how to define it? Yes. किसी को नहीं? Shall we move ahead? Yes sir. Excuse me sir. अभी Sir, excuse me sir. हाँ बोलो. So then what is the difference between center of gravity and equilibrium? See, the object is at equilibrium when you are supporting it at the center of gravity. Equilibrium is the phenomena. Center of gravity is the position. Yes sir, got it. समझ में आ रही है बात? Yes sir. We Yes. are whatever we have defined just now, center of gravity. हमने center को define किया. Center is what? A location. Equilibrium क्या है? एक phenomena है कि नहीं? Yes sir. किसी और को कुछ डाउट है ऐसा? देखो, that was a very good doubt. I would really appreciate these kinds of doubts, and in fact I'll be happy to get such queries which really have a lot of logic in it. That was a real great question that was asked. Thank you sir. किसी और को कुछ पूछना है? No, sir. Okay, let us come to some common objects. अभी हम लोग ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की कोशिश करेंगे जो हम डे टू डे यूटिलाइज करते हैं
या maybe like we at least see, if not utilize, we at least see them in a day to day life. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमने देखे हैं एटलीस्ट, इफ नॉट यूज्ड, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे? अभी यूजुअली आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, है ना? आप लोगों ने Yes, मैथ्स sir. पढ़ा है। मैं सबसे बेसिक चीजों पे जाता हूँ पहले। मैथ्स पढ़ा है आप लोगों ने, आप सब लोगों ने, करेक्ट? तो आप लोगों ने कभी सरफेस क्या होता है ये सोचा है? व्हाट इज अ सरफेस? सरफेस क्या होता है? So an area which is perfectly measured. Area which is okay, I'll take that. Great. Okay, anything, any bounded two-dimensional figure is a surface. Agreed or not? Yes, sir. है ना? There are boundaries to it. अब हम क्या कहेंगे? उन बाउंड्रीज को हम उसका लैमिना कहेंगे। क्या कहेंगे? लैमिना। Lamina. When we are speaking, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरी उसको ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, उसको सरफेस का नाम नहीं दे रहे। उस ऑब्जेक्ट को सरफेस है। अब हम कुछ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे एक कार्डबोर्ड लो। हम यूजुअली, नो डाउट कार्डबोर्ड हैज अ बिट ऑफ थिकनेस, बट तुमने चार्ट पेपर देखा होगा थोड़ा, Yes, sir. उसमें थोड़ा थिकनेस के कुछ कार्डबोर्ड देखोगे जो उससे थोड़े थिक होते हैं, बट वो टू डायमेंशनल लगते हैं। ऐसे देखे कुछ छोटे वाले Yes, sir. स्क्वायर स्ट्रिप लगते हैं, जैसे अपने स्क्रैप बुक के पेजेस लो आप, है होते हैं कि नहीं? थोड़े स्ट्रिप होते हैं कि नहीं? Okay, स्क्रैप sir. बुक देखिए, आप लोगों ने यूज किया होगा ना कुछ प्रोजेक्ट्स में। Yes, sir. Yes, sir. During 4th and 5th times. हाँ, Yes, उसके sir. पेजेस थोड़े स्टिफ लगते हैं, तो वो एक प्लेन सरफेस ले सकते हैं हम लोग उसमें, है कि नहीं? उसको उस एक कागज को, और वो स्टिफ है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। कैन यू बैलेंस इट? Yes, sir. Sir, पर वो मुड़ जाता है. शेप यूजुअली होता है, दो शेप हो सकते हैं। एक तो रेक्टेंगल, या तो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है वो स्क्रैप पेज, वो प्लेन। वो अभी फिलहाल तो मैं उस पेज की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं उसके हिसाब से हम लेट अस ट्राई टू टेक द ज्योमेट्री ऑफ दैट। तो वो या तो रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है या तो स्क्वायर शेप हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. है ना? अच्छा, तो अभी आप उसको बैलेंस कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कहां पर वो बैलेंसिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करूंगा? कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? So may I? यस, प्लीज ट्राई इट आउट। So we will try to a string and then hang it to something, and then the point where it will be tilted, we can balance it over there. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट ट्रायल। मैं एक और चीज बताता हूँ। आप लोगों ने स्पेसिफिकली स्क्वायर बनाने की कोशिश किया होगा पेज को। आपने एक पेज पढ़ा है, ओके, सादे पे, नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी नॉर्मल पेज, और आपने उसको फोल्ड किया है, देखा है? ट्रायंगुलर फोल्ड दिया है आपने। Yes, sir. Yes, sir. फिर Diagonals. हमने वो नीचे से वो पार्ट फोल्ड करके उसको टेयर ऑफ कर दिया, है कि नहीं? टेयर ऑफ कर Yes, दिया sir. तो वो स्क्वायर टाइप शेप आ गया। फिर हमने क्या किया, जैसे ये एज इस एज पे लाया, वैसे दूसरा एज पे इस चौथे एज पर लेकर गए, तो वो द डायगोनल्स, कहीं तो भी एक पॉइंट मिलेगा हमको, है कि नहीं? मिलेगा ना Yes, पॉइंट? sir. That is the center of gravity of that square surface. So what is the center of gravity of a square lamina? The place where the The point of intersection Point of where the diagonals. diagonals meet. correct, the point at which the diagonals meet, or the point of intersections of the intersection of the diagonals of a square. Same thing can we speak about even the rectangle? वही Yes, चीज sir. के बारे में Yes, बात, sir. क्या अलग होने वाला है? वहीं पे Sir, तो diagonal है कि नहीं? तो वहां पर इवन रेक्टेंगल कैन बी बैलेंस्ड। पैरेललोग्राम में अलग होगा कुछ? sir, rectangle में diagonal के जगह पे median आएगा ना? नहीं, diagonal भी चलेगा। मीडियन अभी तक हम लोग मीडियन की बात तक नहीं आया हूं मैं। आई पर्पसली डिड नॉट कम येट टू द मीडियन, बिकॉज हमने उस मीडियन रिलेटेड फिगर को हमने अभी तक वी हैव नॉट डिस्कस्ड, है ना? मीडियन, Yes, वी sir. डोंट हैव क्वाड्रिलेटरल्स को मीडियन हमने अभी तक, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, करेक्ट? हमने Yes, मीडियन sir. ओनली 3 साइडेड फिगर्स तक अभी तक पढ़ा है। किसी ने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स या उसके बाद मीडियन? किसी ने पढ़ा है क्या? No, sir, no. मुझे नहीं लगता है, एंड वी डोंट हैव इट इन स्कोप। लेट अस नॉट थिंक है कि नहीं है, वो भी छोड़ दो। पर मीडियंस हम लोग यूजुअली 3 साइडेड फिगर्स के लिए यूज करते हैं ना, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल्स के लिए, ग्रेट। बट अभी हम फिलहाल क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में भी वही होगा, डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम, Yes, पैरेललोग्राम Same. सेम थिंग, Diagonals.
करेक्ट, वही पॉइंट होगा ना जहां पे डायगोनल्स मीट करेंगे. रोम्बस का क्या होगा? Same as diagonal. square. करेक्ट, सेम एज डायगोनल्स. स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, डायगोनल, ये सॉरी पैरेललोग्राम, ये चारों जो फिगर्स है ये क्वाड्रिलैटरल फिगर्स. यहाँ पे हमने क्या क्या बोला है कि जहां पर इनकी डायगोनल्स मीट करेगी वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, है ना? जचती है बात? Yes, sir. अग्रीड? Yes, sir. दिमाग Yes, को sir. मतलब, डू यू फील इट इज लॉजिकल? Yes, लग sir. रही है ना Yes, logical? sir. Because even if you check now, even at this instant, at this very moment, if you have a book with a stiff cardboard, try to balance it, you'll come to know that your fingertip it is at that particular point where if you take that surface of the cardboard and draw diagonals, that is the point where you are balancing the entire book. I'm not speaking vertically, I'm speaking horizontal position. Vertically bhi aata hai, but that we are going to speak a little, those becomes a little two-dimensional linear figures, then it's very easy to do that. Okay, अभी हम लोग आते हैं एक रॉड, एक स्ट्रेट लाइन समझो, थोड़ी थिकनेस वाली. अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो अभी जैसे मैंने स्केल पकड़ा था, कहां पर हमने उसको बैलेंस किया था? मैंने कहां 15 पे balance centimeter. है ना, एक मिड पॉइंट पे जो सेंटीमीटर वाइज समझो 10 सेंटीमीटर की है तो 5 5 centimeter. अग्री करते हो आप लोग सब? Yes, Yes, sir. sir. रॉड का भी वही है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड वुड बिकम द, अगर कोई रॉड है थोड़ी थिकनेस वाली, उसको अगर बैलेंस करना है कि नहीं, तो कहां पे बैलेंस होगा वो? The midpoint. Midpoint. है कि नहीं? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू अ लिटिल, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं पहले, फिर मैं अच्छा मैं देख रहा हूं अभी, ये स्क्रीन दिख रही है आपको सब लोगों को? Yes, Yes, it's sir. loading. Yes, sir. No, sir, it is. इज इट? It's Yes, loading, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. Now it's visible. अभी मैंने क्या किया, ये एक पार्ट लिया है, ये सर्कुलर है, पर मैंने उसको ऐसे ऐसे लग रहा है हम लोग साइड से देख रहे हैं उसको, थोड़ा टॉप से, है ना? Yes, sir. तो ये टॉप सरफेस है सर्कुलर, और टू एन एक्सटेंट दिस इज द बॉटम सर्कुलर सरफेस. ओके, ये ऐसा बॉटम सर्कुलर सरफेस है किसी चीज का, एंड इट हैज इट्स ओन बाउंड्रीज. ओके, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है? There's one more. क्या लग रहा है ये, क्या कैसे दिख रहा है, क्या शेप लग रहा है? Cylinder. 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 सिलेंड्रिकल शेप लग रहा है. Yes, sir. मतलब देखो, मेरा ड्राइंग भी अच्छा नहीं है, एंड मे बी आई एम यूजिंग अ व्हाइट बोर्ड, तो उस वजह से वो एटलीस्ट लग रहा है. चलो ग्रेट, सिलेंडर सबको लग रहा है ये. Yes, Okay. sir. हाँ, sir. टॉप Yes. सरफेस सर्कुलर होगा, अगर सिर्फ सरफेस की बात करें तो उसको सेंटर हो सकता है ना टॉप सरफेस हाँ, पे? sir. हो Yes, सकता है. sir. वो सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सर्कल, अग्रीड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. है कि नहीं? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर रेड पॉइंट, आई होप हाँ, इट इज sir. Yes, sir. है ना? तो Yes, वैसे sir. ही नीचे भी एक होगा ना कहीं तो भी. Yes, sir. ग्रेट. किसी को ऐसा है कि तो कोई डाउटफुल है कि सी अज्यूम, इफ नॉट अज्यूम दैट these are the centers, है कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. दिस इज एन इमेजिनरी थिंग, दिस इज नॉट अ रियल थिंग, आई एम रियली सॉरी. दिस इज एन इमेजिनरी थिंग, आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन these both centers. अब ये तो बीच से जाएगा ना, सिलेंडर के बीच से, ये तो Yes, sir. इमेजिनरी लाइन. इस लाइन को क्या कहते हैं पता है? Axis of cylinder. Axis of the cylinder, the imaginary line which joins the center of the two cross sections. इनको हम लोग क्या कहेंगे, इन surfaces को क्रॉस सेक्शंस कहेंगे. क्या कहेंगे उनको? Cross Cross section. section. क्रॉस सेक्शंस. अब मैंने उनको ज्वाइन कर दिया. ओके, मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है अभी. तो ये ज्वाइनिंग लाइन का अगर आप इनसाइड, मतलब अभी ये थोड़ा वर्चुअल हो गया, पर ये डज लाइक, बट ये इसका अगर आप मिड पॉइंट ढूंढेंगे इस एक्सिस का, अभी ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ये अभी 2 डायमेंशनल नहीं रहा है. अग्री तो करते हो ना तुम लोग सब? Yes, sir. इट इज नो लॉन्गर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नाउ, इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी आर स्पीकिंग ऑफ.
भले वो हॉलो सिलेंडर है, भरा हुआ सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को भी दो सर्फेसेस हो गए, दोनों सर्फेसेस कौन से स्फेरिकल शेप होगा, करेक्ट? सर पर उसका सेंटर उसके मटेरियल में, सॉरी स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर शेप, आई एम रियली सॉरी, दोनों एंड्स को सर्कुलर शेप होगा, भले वो खुला होगा। हॉलो सिलेंडर में ऐसे भी कुछ हॉलो सिलेंडर्स हो गए तो दोनों बाजू फिल खुले, लाइक अ पाइप, पाइप है तो पाइप में वो दोनों एंड्स खुले हो गए, है कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, यस so but in this condition the midpoint will not be in the material, मिड पॉइंट विल नॉट बी, so not in the material of the body. हाँ, it won't be in the material, but it will be inside the area or bounded region of that particular object. Okay sir. हम लोग imaginary पकड़ रहे हैं ना भैया, we are Yes not, yes. we are not considering anything which I am now going to, मतलब वो काट के मैं आपको दिखाने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा मैं, because till the time I cut it into pieces, its center of gravity will change. Yes sir. हाँ सर. तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं उसमें, है ना? तो वो इस एक्सिस का अगर आप मिड पॉइंट लेते हो, है ना, भले वो हॉलो है जो ओपन एट बोथ एंड्स है, या हॉलो है दोनों बाजू से ढक्कन लगे हुए हैं, जैसे एक डिब्बा है ना, ऐसा आपके किचन में कुछ डिब्बे होते हैं ना जो यूजुअली जार्स आर देयर, सम आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ढक्कन लगा हुआ, टॉप बेस भी कवर्ड है, टॉप भी कवर्ड है कि नहीं? होते हैं ना कुछ, होते सर होते. Yes, sir. है। वैसे ही कुछ ऐसा हो सकता है कि सॉलिड सिलेंडर्स हो, मतलब पूरा मटेरियल भरा हुआ है उसके अंदर, पूरा सॉलिड, मतलब पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ, उसकी सरफेसेस भी लोहे से, अंदर भी पूरा लोहा लोहा भरा हुआ, ऐसा सॉलिड या हॉलो सिलेंडर है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है? द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात? Yes sir. है ना? और लॉजिकल लग रही है? हाँ सर. है कि नहीं? ठीक है, लॉजिकल हमने कैसे निकाली? पहले तो लॉजिक हमने इसमें भी निकाला था, स्क्वायर में और पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स में, तो यही सेम लॉजिक यहाँ पर लग रहा है ना? हमने रॉड में भी निकाला, रॉड में क्या लॉजिक निकाला कि जहां पर हम बैलेंस, हमने देखा यूजुअली अगर उसकी लेंथ करोगे तो उसका मिड पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो वैसे इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अभी याद रखो, क्या बोलोगे फिर आप उसको, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? sir? Yeah. So the axis of cylinder. No, it is the midpoint of the axis of cylinder. I am asking you about the center of gravity, correct? मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? Center of gravity. So what will I say? It is the midpoint of axis of the axis of the cylinder. समझ में आई बात? Yes sir. अगर सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में हो गया, है कि नहीं, तो उसके हाइट का मिड हाफ हो जाएगा वो, है कि नहीं? और उसको स्लैंटिंग पोजीशन में अगर सुला के रखा तो उसकी लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ का आधा पॉइंट। बट वो कहां पर है? इनसाइड है वो सरफेस पे नहीं बोल रहे हम लोग, वो कहां पर है? हम उसको बैलेंस सरफेस पे करेंगे, पर वो पॉइंट एक्चुअली किधर है? ऑब्जेक्ट के अंदर है, इनसाइड तो भले उसके अंदर मटेरियल है नहीं है, उससे लेना देना नहीं, वो है कहां पर वो चीज, वो पॉइंट कहां पर है, पोजीशन दैट इज लाइंग इनसाइड ऑब्जेक्ट, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? यस सर। किसी को कुछ डाउट ये बारे में? नो सर। ओके ग्रेट। अभी आप लोगों ने मुझे पहले मीडियन पे, यू वर ट्राइंग टू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडियन। चलो अब लोग हम लोग ट्रायंगल्स पे आते हैं। यस, समवन प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट डू वी मीन बाय अ मीडियन। क्या होता है मीडियन? सर इट इज लाइक, yeah, 1 minute, just 1 minute, let me complete one more question along with it। तो उसको जो भी आंसर करना चाहिए उसके बाद कर सकता है, या आप भी कर सकते हो, और उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है मीडियंस की वो बताओ। यस, नाउ प्लीज गो अहेड, यू आर सेइंग समथिंग अबाउट द मीडियन। यस बोलो। सर इट इज सेम एज diagonals sir, but there are 3 medians in a triangle. Okay, I'll take that for a while, we'll make Sir, some may I changes try? here. Yes please, देखो Sir, सब ट्राई कर सकते हो। Sir, there are 3 corners in a triangle. So at one line is drawn from a corner, and the line meets the another line at the middle of the other line, and Okay, same with the other twos. So where the 3 lines meet, there's the center of the triangle. So, but okay, Parth, what if the triangle is an isosceles triangle?
Okay, we'll come to that. We'll come to that. Chalo. Your question is also, I'll take that by your time. Please give me some time to explain me that. Yes, I'll sir. take Parth's answer. He says he's trying to give an answer to it. And I understood what he was trying to say. Okay. There might be questions in someone else's mind, but I did understand a part, major part of it. Anyone else wants to try? किसी और को कोशिश करना है क्या ये बताने के लिए? कोई और चाहता है कोशिश करना? बताओ. मीडियन क्या है वो तो बता दिया उन्होंने. और कुछ प्रॉपर्टी है मीडियन की? तुम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ग्रेड 9 में. Median shows the height of the triangle. No, not always. Not always, child. I'm really sorry for that. उसके लिए बहुत दो स्पेशल कंडीशंस है तभी वो हाइट बन जाता है. देखो मीडियन क्या होता है पता है? मीडियन, और हम लोग अभी कॉर्नर कहना भूल जाएंगे प्लीज, बिकॉज वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आल्सो अलॉन्ग विद फिजिक्स. देखो फिजिक्स और मैथ्स कभी अलग नहीं हुए. ओके, वील कॉल इट एज वर्टाइसेस. क्या कहेंगे हम उनको? वर्टाइसेस, है ना. स्क्वायर में 4 वर्टाइसेस या क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं, ट्रायंगल्स में 3 वर्टाइसेस होते हैं. ओके, किसी एक वर्टाइसेस पे, अभी समझो मैंने वर्टेक्स ए लिया इधर. ओके, इसको ए वर्टेक्स लिखा है ना, बी और सी ये 3 वर्टाइसेस है ना. ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स हैं. अब मैंने क्या किया, एक साइड लिया बीसी और उसका मिड पॉइंट ढूंढा. समझो क्या ढूंढ लिया मैंने. समझो फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट नहीं लग रहा है, थोड़ा ये साइड में लग रहा है. ये मिड पॉइंट आसपास, एग्जैक्ट नहीं पर आसपास. Yes, sir. midpoint लग रहा है. Yes, sir. ओके ग्रेट. अब द लाइन, okay, a line segment or a line, okay, which initiates from one vertex, किसी एक vertex से वो चालू हो जाता है, and it divides the opposite side to it into equal halves, 2 equal parts. क्या कर रहा है वो? सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक तो ये डेफिनेशन हो सकता है, या तो दूसरा डेफिनेशन मीडियन का ये है कि the line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side is called as the median of the triangle. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. है ना. ऐसी कितनी मीडियन होती है ट्रायंगल को? 3. 3. 3 मीडियन होती है ना हर ट्रायंगल को, भले वो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, भले वो स्केलेन ट्रायंगल है, भले वो इक्विलैटरल है. करेक्ट. 3 वर्टेक्स, हर एक को 3 वर्टाइसेस और 3 मीडियंस होंगे. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, इस मीडियन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है. भले वो ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो, ये तीनों मीडियंस एक पॉइंट से, जैसे डायगोनल पास थ्रू वन पॉइंट, डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल के, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. अभी तो डायगोनल तो 2 ही थे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना बहुत मुश्किल नहीं है. पर ये 3 डायगोनल, जिसको अभी हम डायगोनल्स नहीं कहेंगे, मीडियंस कहेंगे, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ट्रायंगल तुमको 3 मीडियन निकाली और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा होगा ही नहीं. आपको लग रहा है ये स्केलेन ट्रायंगल टाइप में? Yes, sir. आपको पता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो जिस पॉइंट पे मैंने वो मीडियन इंटरसेक्ट करती है? Point of intersection of median. Yeah, it is the point of intersection, but there's a very special name given to it. Does anyone know of it? किसी को भी कुछ पता है इस बारे में? It is called as a centroid of the triangle. क्या कहते हैं इसको? Centroid. Centroid of a triangle. समझ में आई? और यही पॉइंट है जो अगर कोई भी ट्रायंगुलर सरफेस, ट्रायंगुलर लेमास, ट्रायंगुलर लेमिना, देखो सरफेस ही कहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं. याद रखना क्या क्या नाम देते हैं वो सरफेस को, ये याद रखो. या तो ट्रायंगुलर सरफेस, कोई भी ट्रायंगुलर छोड़ो, कोई भी सरफेस रहने दो, या तो सरफेस कहते हैं, या तो उसको क्या कहेंगे, लेमा, या तो उसको क्या कहेंगे, लामिना. Lamina. ठीक है, दिख रहा है ना सबको क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने? Yes, sir. या तो हम उसको सरफेस कहेंगे, या तो उसको लेमा कहेंगे, या तो लामिना कहेंगे. तो ट्रायंगुलर लेमिना है हमारे पास. ओके,
As of now, think that it is a surface, triangular lamina. उसका जो medians का meeting point है, that is called as a centroid. Centroid. What is it called as? The centroid of the triangle. समझ में आ रही है बात? Centroid क्या Yes, होता है? sir. है ना? And that is the center of gravity of any triangle, any type. तुम स्केलर लो, तुम आइसोसेलेस लो. समझ में आया? किसी आपने क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट आदित्य, Yes, sir. कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा? तो आइसोसेलेस Yes, में sir. कुछ अलग नहीं होता है ना. आइसोसेलेस, ये तो स्केलर ट्रायंगल है. चलो मैं आइसोसेलेस का भी दिखा दूंगा, नॉट टू वरी. No, sir, I got it. है ना, आइसोसेलेस में भी, बट आइसोसेलेस में एक स्पेशलिटी है और इक्विलैटरल में एक स्पेशलिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो दिखाऊंगा. Okay, sir. है ना, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में एक स्पेशलिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये ट्रायंगल, इक्विलैटरल लग रहा है ये, Yes, sir. है ना. इस ट्रायंगल का कोई भी एक मीडियन पकड़ो आप, कोई भी एक मीडियन, है ना. 3 मीडियन तो इसको भी होगी, आप कोई भी एक मीडियन निकालो. चलो ये छोड़ दो, मैं ये वाला मीडियन नहीं लेता हूँ, इससे तो आसानी से पता चलता है. यहां से एक मीडियन निकालता हूं. अब इसकी स्पेशलिटी ये है, ये जो मीडियन है, कोई भी मीडियन, ना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी मीडियन और उसका हाइट, हाइट पता है ना, हाइट को और क्या कहते हैं Yes, पता है sir. आप लोगों को? So हाइट perpendicular. को, सॉरी, Perpendicular. परपेंडिकुलर नहीं, उसको स्पेशल नाम है मैथमेटिक्स में, कोई बता पाएगा? पिछले साल हमने वो नाम पढ़ा भी है. उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? Altitude. सुना है कि नहीं नाम? नहीं सुना हाँ है? सर, सर वो टाइम पे कुछ याद नहीं आता. ऑल्टीट्यूड, उसको हम लोग और क्या कहेंगे? हाइट ऑफ ट्रायंगल. Sir, H is missing. हाँ, No, sir, no. Nothing. अभी ये उसकी स्पेशलिटी मैं आपको बता रहा था. इसकी स्पेशलिटी ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि उसका कोई भी मीडियन आप पकड़ोगे ना, वो और उसकी हाइट एक ही जगह पे होगी. ये केस इसमें नहीं है, ये हमको इसमें नहीं मिलेगा. यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर इसकी हाइट देखो, इसकी मीडियन, और मैं अभी हाइट निकाल रहा हूँ इसकी. इसकी हाइट और मीडियन बहुत अलग है. मैं उसका कलर चेंज करता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा. ये देखो, ये इसका हाइट है, उसी वर्टेक्स से निकाला हुआ हाइट, और मीडियन ये वाला है. मैं उसको नाम देता हूँ, AM उसका मीडियन बन गया और AP उसका हाइट बन गया. देखो कितना डिफरेंस है हाइट और मीडियन, है क्या नहीं? Yes, sir. तो स्केलर ट्रायंगल में हाइट और मीडियन सब अलग हो, सब तीनों वर्टेक्स से अलग होती है. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्सेस से तुम हाइट भी वही निकालोगे जहां पे मीडियन निकलेगा. सेम लाइन बिकम्स इवन द हाइट इवन द मीडियन, है कि नहीं? और आइसोसेलेस ट्रायंगल में थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब इन दोनों के बीच का है, एवरेज है इन दोनों का, है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालते हो, लग रहा है आइसोसेलेस, ये तो सिंपली आइसोसेलेस लगता है. ये देखो जो अनइक्वल वर्टेक्स है, देखो इसके कौन से 2 इक्वल वर्टेक्सेस है मुझे बताओ. ये मैं उनका नाम देता हूँ, रुको एक मिनट. ये ट्रायंगल का नाम XYZ है, समझो. ये ट्रायंगल है XYZ. उसका अनइक्वल वर्टेक्स कौन सा है बताओ मुझे, कौन सा लग रहा है इसमें? So the X1. X, correct. X is an unequal vertex. This is an unequal vertex. Agreed or not? सबको लगता Yes, है ना? sir. देखो हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल वर्टेक्स हो गए, है ना. ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये इसके इक्वल वर्टेक्सेस हो गए. पर ये उसका इक्वल वर्टेक्स नहीं है, अनइक्वल वाला वर्टेक्स है. अगर आप X. अनइक्वल वाले वर्टेक्स से अगर मीडियन निकालते हो, देखो किस वर्टेक्स से बोल रहा हूं मैं, अनइक्वल वाले वर्टेक्स से अगर मीडियन निकालते हो, तो वो और उसका हाइट सेम होगा. इक्वल वालों में से नहीं होगा. इक्वल वालों में से अगर हाइट निकालोगे ना, तो हाइट अलग बनेगा और उसका मीडियन अलग बनेगा.
मीडियन अलग जगह पे जाकर पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और हाइट एक ही जगह पे है। स्केलर में मीडियन और हाइट तीनों इसमें अलग जगह पे। आइसोसेलेस में सिर्फ एक जगह पे मीडियन और हाइट सेम जगह पे। कहां से? व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अनइक्वल वर्टेक्स ऑफ द 3 वर्टाइसेस। समझ में आई बात? अब मैं वापस अपने फंडामेंटल पे आता हूं कि देन फिर ये तीनों टाइप के ट्रायंगल में हम लोग उसका ये कहां पे ढूंढेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन व्हिच इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आई बात? आप Yes, सिर्फ sir. सेंट्रोइड लिख के बच नहीं सकते हो, आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 medians of the triangle angular lemma, that is the centroid of the triangle. समझे अभी तक? समझे? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. सब लोग? Yes, हर sir. कोई? सबको समझ में आया? Yes, sir. श्योर? तो कौन से शेप्स के हमने निकाले? हमने 2 डायमेंशनल के शेप्स के निकाले। कौन से 2 डायमेंशनल शेप्स निकाले? वन वाज रेक्टेंगल, स्क्वायर, Rectangle. मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप्स। करेक्ट? हमने क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल शेप्स के निकाले। हमने अभी तक ट्रेपेजियम का नहीं निकाला। वी डिड नॉट फाइंड Yes, आउट sir. ट्रेपेजियम। करेक्ट? वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। है कि नहीं? हम किस पे वरीड है? वी आर वरीड एट Triangle. हाँ, तो ट्राइंगल्स का देखा हमने और क्वाड्रिलेटरल्स का देखा। ट्राइंगल्स में कैसा? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल्स का कैसे देखा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आई एम रियली सॉरी, है ना? फिर हमने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखा। कौन सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखा? Cylinder. कौन सा शेप था वो? Cylinder. सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप का कैसे निकाला हमने? So by कैसे निकाला? cylindrical? so the It is the midpoint of axis of midpoint cylinder. Yes, it lies at the midpoint of the axis of the cylinder. समझ में आया व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कहां पर होता है? Yes, sir. अब रह गया कोन्स। ओके, थोड़ा अलग चीज। ओके, दैट विल नॉट रिक्वायर मच ऑफ टाइम। मैं थोड़ा कोन निकालने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट लगेगा हार्डली, आई थिंक सो। एक ट्रायंगल निकाल लेता हूं मैं और इसी के ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर निकालता हूँ। लगता है थोड़ा कोनिकल शेप। सर अगर वो रेड कलर के जगह पे बस एक रेड कलर का सर्कल आ जाएगा तो दूसरा कलर लगा, चलो ठीक है, ये ले लो। no sir, no sir, not the complete circle should be red, only the boundary should be red. नहीं, मैं पूरा ही निकाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा सोच लो कि इट्स अ ट्रांसपेरेंट कोन, ऐसा सोचो। Yes sir, yes sir. ग्लास से बना हुआ तो उसका सब एज दिख रहा है, ऐसा सोचो। उसका लोअर बॉटम भी दिख रहा है, ऐसा सोचो। Yes sir. तो थोड़ा कॉनिकल शेप लग रहा है। करेक्ट? अब तुम लोगों को पता है कोन में उसका हाइट होता है। अभी तक तुमने तो मेंसुरेशन पढ़ा नहीं है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। डू यू नो व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कोन? किसको कहते हैं हम लोग कोन का हाइट? किसी को पता है क्या? So the diagonal which comes from the ये तो highest point. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ अ कोन, है ना? सो अब ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। करेक्ट? कोन का बेस Yes sir. है कि नहीं? कौन सा सरफेस, कौन सा कलर, कौन सा शेप है ये? Circle. सर्कुलर शेप। तो उसको भी सेंटर होगा ना? Yes sir. तो उसका सेंटर लेंगे एंड द लाइन विच जॉइंस, द लाइन विच जॉइंस this, again this is an image, also an imaginary line, but now we will not call it anymore as an imaginary line. This is called as the height of the cone. Okay, so a perpendicular line drawn from the vertex of the cone to the base of the cone is called as the height of the cone, है ना? अभी कोन में थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अभी। ओके, कोन में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ना। कोन में क्या Yes, होता sir. है, हॉलो कोन होता है और सॉलिड भी कोन होता है, मतलब अंदर का मटेरियल भी लोहे का और बाहर से भी लोहे का बना हुआ। Yes, देयर आर sir. टू टाइप्स ऑफ कोन। एंड अदर हॉलो कोन में क्या होगा, सिर्फ उसके सरफेस है, उसको कर्व सरफेस है, अंदर कुछ नहीं है, खाली एकदम, So है ना। like the party one. हाँ करेक्ट। आप वो बर्थडे कैप्स देखे होगे आप लोगों ने, है ना, बर्थडे के वक्त वो कैप्स इस्तेमाल करते हैं, या आप आइसक्रीम कोन खाते हो तो उसके पहले उसके अंदर आइसक्रीम डालने से पहले जो पार्ट होता है वो हॉलो कोन होता है। अग्री करते हो नहीं करते हो? Yes, sir. अभी ये देखो, इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। सोचो इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी से रिलेटेड आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, इसी के साथ रिलेट करके आएगा। Sir, at the height from the base on its axis. या बट हाउ मच, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस, कितने कितने डिस्टेंस पे मिलना चाहिए वो? आपको क्या लगता है कहाँ पे होगा वो? पानी की लगता है आपको? सॉरी, हाँ, क्या लगता है कहां पर हो सकता है, हॉलो कोन में कहां पर हो सकता है? देखो आपको पता है कि अगर ये सॉलिड कोन है तो ये पार्ट उसका बहुत हैवियर पार्ट होगा और अपर पार्ट थोड़ा लाइटर पार्ट होगा, है ना। Yes, sir. तो उसको बैलेंस करना है तो थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए उसका हाइट, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इट इज h/4 फ्रॉम द बेस, 1/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम द बेस। कहां से? बेस की तरफ से कितनी हाइट पे? 1/4। किसका? सॉलिड कोन का। समझ में आई? सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है? Yes, sir. है ना, 1/4 ऑफ द हाइट, और h/4 पर कहां से? बेस की तरफ से, नॉट फ्रॉम द वर्टेक्स। ये लिखोगे नहीं तो इट इज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट। और अगर वो हॉलो कोन है So h/3. h/3 फ्रॉम द बेस। समझ में आया? Yes, sir. I repeat, center of gravity of a solid cone is h/4 from the base of the cone, solid cone का, and the center of gravity of a hollow cone is h/3 from its base. समझ में आ गया? अभी लगभग सब चीजों Yes, का sir. मैंने आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप्स का बताया, है ना। ये सब केसेस हमने आज पढ़ लिए हैं। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते। No, sir. No, sir. समझ में आया आज का सेशन क्या था क्या नहीं? Yes, sir. तो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करने बोलते हैं आप लोगों को, कौन का डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबल करना पड़ेगा। अगर हॉलो बताया तो हॉलो कोन, Yes, sir. सॉलिड बताया तो सॉलिड कोन। यू मे नॉट गिव द पॉइंट एट द परफेक्ट पोजीशन, पर आप वो पॉइंट पे लिखते वक्त एरो मार्किंग से क्या लिखोगे? h/3 या h/4, डिपेंडिंग वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड रिस्पेक्टिवली। समझे? Yes, sir. है ना, समझ में आई बात? तो Yes, sir. ये था अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इंफॉर्मेशन। अभी आप लोगों को और कुछ बताना है तो बताओ, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। No, sir. नहीं पूछना है? So what about a spear? सॉरी, So spear. स्फीयर, हाँ वो अभी तक मैंने बताया नहीं आगे, वो बाकी है अभी, Okay, है ना। sir. स्फीयर का बहुत आसान है ना। स्फेरिकल शेप, भले वो हॉलो, जैसे सिलेंडर है ना वैसे स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप भले वो हॉलो हो या वो भरा हुआ स्फीयर हो। देखो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल अंदर से खोखला होता है, करेक्ट, Yes, sir. है ना। और एक, या इवन फुटबॉल पकड़ो, कोई भी बॉल, मतलब वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अंदर से खोखला होता है, उसमें एयर फिल्ड अप होती है, बट इट इज नॉट द सेम मटेरियल एज इट्स कवरिंग, करेक्ट। और एक, अगर आप शॉर्टपट का बॉल लो, शॉर्टपट का बॉल कैसे बना होता है? पूरा लोहे का होता है, हाँ सर, पूरा अंदर का मटेरियल भी लोहा और भरा होता है सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड, है ना। ये दोनों अगर सेम साइज के लोगे ना आप, सेम साइज, आई एम सेइंग, नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द सेम वेट, आई एम स्पीकिंग अबाउट द सेम साइज। एक फुटबॉल लिया और एक
शॉर्टपट लिया, छोटा वाला फुटबॉल समझो, वो बच्चों को खेलने का आता है ना, छोटे भी लिया हाँ मैंने, सर, हाँ है ना, वो दोनों लिए मैंने, शॉर्टपट का भी। तो उन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन होता है, और उसको कहने के लिए कुछ अलग नहीं कहना पड़ता है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहां पर होता है? geometric center of sphere. Geometrical center of the sphere. So So means it center is of seen to gravity the circle. lies at the geometrical center of the sphere. सर्कुलर लेमा का भी कहां पर होगा फिर, अगर वो सर्कल है, टू Geometric center. डायमेंशनल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आसान थे। एक और शेप बाकी है, मैंने सब नहीं बताया, एक शेप मैंने अगली बार के लिए रखा है, क्योंकि आप लोगों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है अभी तक वो शेप के बारे में, So ना which is एक ही that शेप। one? ओके, तो इसलिए मैंने पूछा आप लोगों को कि आर यू कंफर्टेबल विथ वॉट एवर आई स्पोक ऑफ। अगर अगले इसमें Yes. वो दूसरा लास्ट वाला शेप एंड देन अगला वाला पार्ट कवर करके हमको ये चैप्टर खत्म करना है। So C part नो you want डाउट्स? to? श्योर? Yes sir.